today I will revise chapter 8, India, Climate, Vegetation and Wildlife. In this chapter, first of all, you have to understand, yes, Satvik, difference between weather and climate. Weather means changes in the atmosphere for short period of time. For example, today is very hot. That is example of weather. Climate, when we will discuss the climatic condition for a long period of time. For example, 5 years, 10 years, like we can say the climate of Punjab is extreme or the climate of Mumbai is of moderate type. Then we are talking about climate. Here, next is, yes, about the seasons. There are basically 4 main seasons in India. First is winter season, second is summer season, third is rainy season, and fourth is autumn. Now you have to remember the month. Sanchit, which are the months for winter season? You have to tell me the exact months. Anju beta. Very good. December to February. Now, next is, which are the months for summer in India? Wait. Yes, especially March to May. Very good. Now, rainy season months are June to September, and autumn months are October to November. Next is about the features of different seasons. बच्चे अब आपको हर सीजन के फीचर्स याद रखने. सबसे पहले आपको विंटर सीजन के सीजन का जो फीचर है वो याद रखना है कि विंटर सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत लो. ठीक है. एंड बेसिकली सम हिली एरियाज, these are covered with the snow. ठीक है, throughout the year also. And during these winter months, sun rays are not very direct and intense. यानी कि जो सनलाइट होती है वो बहुत ज्यादा जो है वो नहीं होती, इसलिए we can sit outside in the winter season. What, can you sit in the summer season outside? No. Why? Because during summer the heat and light of the sun is very intense. So that is a feature of winter season. Next is summer season. Summer season के बच्चे features क्या हैं? The features of, yes, features of summer season. Basically in our country there are 4 seasons in country, that is winter, summer and rainy autumn. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है. देन सीजन्स. अब इसके बाद है समर सीजन. समर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, बहुत हाई होता है एंड वी कांट सिट आउटसाइड during daytime because the heat of the sun is very intense. Sometimes people they can face sunstroke, उनको sunstroke हो जाता है, लोग faint हो जाते हैं, dehydration की problem आती है. Reason is because temperature is very high. ठीक है. Next, in some areas loo also blows. Loo क्या होती है? Yes, hot. Yes, hot and dry winds. ठीक है. Then is about rainy season. Rainy season के जो मंथ हैं वो बेसिकली कौन से मंथ होते हैं हमारी कंट्री में? जून टू सितंबर. बच्चे आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में बेसिकली जो विंड्स, कौन सी विंड्स रेनफॉल लेकर आती है? मॉनसून. एंड मॉनसून विंड्स को हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. क्लियर. और मॉनसून विंड्स की हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज इट ब्रिंग्स रेनफॉल. अब इसको कोरिलेट करो. हाँ, आप इसको कोरिलेट करो कि अगर मॉनसून विंड्स ना होती तो हमारी कंट्री में रेनफॉल ना होता. अगर हमारी कंट्री में प्रॉपर रेनफॉल ना होता तो क्रॉप प्रोडक्शन ना होती. अगर हमारी कंट्री में क्रॉप प्रोडक्शन ना होती तो क्या होता? फूड शॉर्टेज. फूड शॉर्टेज क्या होगी तो क्या होगा हमारी कंट्री में? पीपल दे, यस, हाँ, starve. yes, very good. starve का मतलब होता है, starvation का मतलब होता है the process in which lack of food shortage many people die. ठीक है, लोगों की डेथ हो जाती है अगर उनको खाना नहीं मिलेगा. ठीक है. So the importance of monsoon
फॉर अस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कंट्री में 70% फार्मर जो हैं वो बारिश पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, और कई बार बारिश नहीं होती तो ड्रॉट्स आ जाते हैं। सो वी कैन से दैट कि मानसून का आना हमारी कंट्री में प्रॉपर टाइम पे आना और सफिशिएंट रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए बेटा, मानसून वर्ड, मानसून जो है इसका मतलब क्या होता है, मौसम। मौसम का मतलब क्या है, सीजन। यानी कि मॉनसून वर्ड जो है वो मौसम वर्ड से ओरिजिन हुआ है इसका, और इसका मतलब है सीजन। यानी कि हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और हमारी कंट्री में जो रेन है वो कौन से मंथ्स में होती है, यस, जून टू सितंबर, जिसको साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट इज क्लाइमेट। हमने अब ये बताना है कि किसी प्लेस का जो क्लाइमेट है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 1, लोकेशन। लोकेशन में हमने जस्ट इतना याद होना चाहिए, द प्लेसेस विच आर नियर टू द इक्वेटर दीज विल बी वेरी हॉट, द प्लेसेस विच आर नियर टू द, हाँ, फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर और लाई नियर द पोलर एरियाज दीज विल बी वेरी कोल्ड। सेकंड हमने याद करना है एल्टीट्यूड। बच्चे एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड the places which are higher, the places which are higher, हाँ, higher the place more cooler it will be, lower the place more hotter it will be। तो एल्टीट्यूड भी किसी प्लेस का क्लाइमेट जो है वो डिटरमिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इज डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसमें आपने क्या याद रखना है, द प्लेसेस विच आर नियर टू द सी दीज आर मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी दीज आर एक्सट्रीम, हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। ठीक है, देन लास्ट है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है सरफेस, यानी कि जो सरफेस है वो भी मैटर करता है। सपोज डेजर्ट एरियाज में क्या होता है, क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा, लेकिन जो प्लेन्स एरियाज है, प्लेन्स एरियाज का क्लाइमेट वैसे तो एक्सट्रीम है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, डेजर्ट में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। हाँ, अब मैं आपको अच्छा मैं आपको 5 वर्ड्स बोलती हूँ रिलीफ में। माउंटेन्स, जस्ट मुझे क्लाइमेट बताओ, माउंटेन्स, ठीक है, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, नो मॉडरेट ही होगा, सेंट्रल प्लेट्यू एक्सट्रीम हॉट होगा। आप देखो सदर्न इंडिया में अगर आप जाते हो कोस्टल प्लेन्स में ठीक है, लेकिन जो सदर्न एरिया सेंट्रल एरियाज है ना, दीज आर वेरी हॉट। ठीक है, सो रिलीफ जो है ये भी क्लाइमेट को बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट करता है। हाँ, हाँ जी। नाउ सम प्लेसेस इन आवर कंट्री these are extreme, like number 1 Jaisalmer and Bikaner of Rajasthan, yes these are hot or cold, yes Satvik, these are hot and cold, Jaisalmer and Bikaner, hot, and Dras and Kargil in Jammu and Kashmir, why, because of high altitude, like Mumbai and Kolkata, moderate, because they are near to, these are near to sea. Then Mozambique and Meghalaya receives rainy season, rainy होता है, world's highest rainfall, यानी कि जो मौजनराम है मेघालय में ये सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है। ठीक है, so these are some of the places you have to remember the names. Next is about the natural vegetation. Natural vegetation क्या होती है बच्चे, natural vegetation means the grasses, shrubs, plants which grow on their own, जो अपने आप ग्रो होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें ह्यूमंस की इंटरफेरेंस नहीं होती। हाँ जी बच्चे, तो बेसिकली जो नेचुरल वेजिटेशन है दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमारी कंट्री में अलग अलग फीचर्स हैं, फीचर्स के अकॉर्डिंग माउंटेन वेजिटेशन है, कहीं पे थॉर्नी वेजिटेशन है, कहीं पे टाइडल है, कहीं पे एवरग्रीन है, कहीं पे डेसिडियस है। नाउ one by one you have to explain all the features of natural vegetation of our
Number one, you have to remember all the points, features. First of all, tropical, evergreen. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, बच्चे नाम से ही पता लगता है ये क्यों ग्रीन रहते हैं, बिकॉज ऑफ रेन, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब नंबर वन, इसके दो फीचर तो आपको हेडिंग से ही पता लगे। These forests receive rainfall throughout the year. Number two, that's why these remain green, because these, yes, dense, ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। नेक्स्ट, इनके ट्रीज का जो टॉप है वो क्या बनाता है, कैनोपी। कैनोपी बनाने के कारण सनलाइट जो है वो नीचे नहीं आ पाती है, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज आर देयर, अलग अलग तरह के ट्रीज होंगे तो इनका शेडिंग सीजन क्या होगा, अलग अलग होगा। शेडिंग सीजन, शेडिंग सीजन का मतलब होता है द सीजन इन विच लीव्स बिकम ड्राई, और जब लीव्स ड्राई होते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो ग्रीन नजर जो है वो नहीं आते। इनका जो शेडिंग सीजन है वो क्या होगा, सेम। इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, दीज, नहीं बेटा, एवरग्रीन, 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 फिर से याद करो। Why these are called evergreen? Because these receive rainfall throughout the year. Number two, these are very dense. Trees of the top of the trees form canopy and doesn't let sunlight, हाँ ठीक है, into the ground. Then shedding season जो है इनका जो है वो सेम नहीं है, अलग, डिफरेंट है, डिफरेंट, हाँ। और ट्रीज डिफरेंट काइंड के, ट्रीज अलग अलग तरह के। अब ट्रीज के नेम आपको बताने चाहिए, एबनी, महोगनी एंड रोज। एंड एरियाज, रिमेंबर एनी टू एरियाज ऑफ एवर, अंडमान एंड निकोबार एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फीचर्स। नाउ सेकंड इज ट्रॉपिकल deciduous। इनके फीचर्स क्या हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी कि इंडिया के जिन पार्ट्स में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर जब बारिश होती है तो मॉनसून सीजन में होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मॉनसून, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनके ट्रीज सारे जो हैं वो सेम तरह के होते हैं, एक ही तरह के, सेम ट्रीज। एंड शेडिंग सीजन भी क्या होगा, शेडिंग भी सेम टाइम पे होती है। बच्चे अगर शेडिंग सेम टाइम पे होगी तो सारा एरिया क्या ग्रीन नजर आएगा, नो। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनमें जो ट्रीज पाए जाते हैं, साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम, ठीक है। अच्छा, कोई भी 2 स्टेट्स आप याद कर लो इंडिया की सेंटर, हाँ मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। रिमेंबर एनी 2 or 3 states for these tropical deciduous forest. Next is desert vegetation. थर्ड आपको नाम से ही पता लगता है ये कहाँ पे मेन पाई जाती है, थॉर्नी भी कहते हैं इसको। थॉर्नी और डेजर्ट वेजिटेशन, नाम से पता लगता है कि डेजर्ट एरियाज में है। तो हमारे इंडिया में डेजर्ट एरियाज कौन से, थार डेजर्ट मींस राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, बॉर्डर एरिया, सारे नहीं बताने आपने, ठीक है। और मेनली क्लाइमेट बताना, क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई। एंड इस फॉरेस्ट में यानी कि जो ये काइंड ऑफ वेजिटेशन होती है इसमें ट्रीज नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होती है, थॉर्नी बुशेस, कैक्टस, डेट, पाम्स एंड बबूल, ठीक है, देन कीकर, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीज, ठीक है। देन नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो आपकी डिफरेंट वेजिटेशन है दैट इज माउंटेन वेजिटेशन। क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो कि डेजर्ट एरियाज में ओनली दोज प्लांट्स कैन सर्वाइव विच कैन विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। दीज प्लांट्स हैव डीप रूट्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ, बाकी बता सकते हो कि इनकी जो कैक्टस है उनकी जो लीव्स हैं ये स्पाइन है ना। यस, वैक्स कोटिंग होती है। ठीक है बेटा संचित, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट इज हाँ जी माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन हिली एरियाज, लेकिन हिली एरियाज में जो वेजिटेशन है उसके जो मेन फीचर क्या है, वो कौन शेप होती है, इसीलिए इनके फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, कॉनीफेरस फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ यस। क्यों होता है, क्यों सरवाइव कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज व्हेन द स्नो फॉल ऑन दीज ट्रीज स्नो स्लाइड्स एंड इस तरह से ट्रीज को इसका जो है स्नो का हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओनली दीज काइंड ऑफ ट्रीज कैन सर्वाइव ऑन द हाइट ऑफ द माउंटेन्स। फिर आपने बताना है कि यहाँ के जो मेन ट्रीज हैं माउंटेन वेजिटेशन के कौन से, चीड़, पाइन एंड देवदार। ठीक है, एंड इनकी जो वुड है वो बहुत एक तरह से कहते हैं कि गुड क्वालिटी की होती है। ठीक है, देन माउंटेन वेजिटेशन में और आप बताओगे कि माउंटेन एरियाज में जो क्रॉप्स है वो फर्टाइल नहीं होती हैं, लेकिन ट्रीज हाँ फर्टाइल सॉइल, लैक ऑफ फर्टाइल सॉइल इज देयर, लेकिन कहीं कहीं स्लोप्स पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। ठीक है, देन लास्ट इज मैंग्रोव। मैंग्रोव का मतलब क्या होता है, टाइडल भी कहते हैं। मैंग्रोव मीन्स टाइडल। टाइडल, टाइडल इसका नेम से पता लगता है जहां पे टाइड्स आती हैं। टाइड्स बेसिकली कहां पे आती है, कोस्टल, टाइड्स का मतलब होता है जब सी लेवल हाँ राइज और फॉल, सी लेवल राइज और फॉल। ठीक है, अब ऐसे एरियाज में बेसिकली टाइड्स आती हैं। तो हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे टाइडल फॉरेस्ट मेन पाए जाते हैं, इसको मैं मैप, इसके लिए मैप जो है बता रही हूँ, मैप के एरियाज जो है बच्चे आपको इसके लिए ना सदर्न इंडिया के एरियाज याद करने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने इंडिया का सदर्न पार्ट जो है, ठीक है, उसको ड्रॉ किया है। तो सदर्न पार्ट में जहां पे महानदी रिवर है, महानदी रिवर का डेल्टा, यहाँ पे टाइडल फॉरेस्ट है। फिर है गोदावरी रिवर, फिर कृष्णा रिवर, फिर कावेरी रिवर। एंड यहाँ पे है सुंदरवन डेल्टा। तो ये सारे क्या हैं, जहां पे मैं शेड कर रही हूँ बेटा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, अब इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि टाइडल फॉरेस्ट के फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रीज, सुंदरवन यहाँ के बहुत फेमस जो हैं, उनको सुंदरी ट्रीज जो हैं बहुत फेमस हैं, और ये ट्रीज जो हैं वो बोट बनाने में बहुत ज्यादा मतलब जो है वो बेनिफिशियल है। एंड फिर आप सुंदरवन बता सकते हैं कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। ठीक है, और ये कुछ हमारी कंट्री की मेन नेचुरल वेजिटेशन है। आपको बच्चे नेचुरल वेजिटेशन के फीचर्स जो हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद व्हाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी, हमने बताने हैं यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। नाउ ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट ऑफलाइन विल टेल मी वन यूज ऑफ फॉरेस्ट। वेट नंबर 1,
यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, यस नंबर 1, हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है? वुड, वेरी गुड. सो इन दिस वे यू कैन राइट सो मेनी यूजेस. नंबर 2, हाँ जी, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, मेडिसिन, वेरी गुड. 3, fuel. Fuel means timber for cooking purposes. 4th, shelter, very good. Shelter to wildlife and birds, ठीक है. Then 5th, हाँ जी, ऑक्सीजन. 6th, हाँ जी, हाँ जी बेटा, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, एक मिनट बच्चे, हाँ जी, रबर, वेरी गुड. हाँ जी, एक, हाँ जी, हाँ, ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेरी गुड. एंड लास्ट, okay, trees, they release oxygen and take carbon dioxide, and in this way trees help. Very good. So yes, very good. So these are the reasons. Yes, Sanchit, these are the reasons why forests are very important. लेकिन suppose if the question is of 1 mark, then you can write words. But if the question is of 3 or 5 marks, you have to explain in line. Like number 1, forests are necessary because trees in the forest provide wood and medicine. हमने एक point बना दी. Second point, forests are also important because trees provide us timber and shelter. Shelter to wildlife and birds. Then third, trees in the forest provide us oxygen. Satvik, it is clear to you, beta? Clear? हाँ जी. So these are the reason. And फिर हमने एक concept बताना है, वन महोत्सव क्या होता है. Government has launched various kind of programs to tell children about the importance of trees. Each one, ठीक है, each one plant one tree. हाँ, हर एक बच्चे को एक पेड़ जो है वो उगाना चाहिए. लाइक बर्थडेज, अपने आपका जो बर्थडे होता है ना, आप फ्रेंड्स से सेलिब्रेट करते हो, लेकिन आप जो है वो ट्री प्लांटेशन भी कर सकते हो. ठीक है, ट्राई किया करो कि आप हर बर्थडे पे अपने घर के आसपास जो है वो ट्रीज लगाओ. और इस तरह से अगर हर बच्चा ये प्लेज लेगा तो ऑटोमेटिकली आप ये सोचो कि ट्रीज जो हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी बढ़ेगी, और आगे आने वाले टाइम के लिए ट्रीज कितने बेनिफिशियल. आप आज जो ट्रीज देख रहे हो, ये आपके पहले यानी कि 10-20 इयर्स पहले लोगों ने लगाए होंगे, वो उनके फ्रूट्स आप एंजॉय कर रहे हो. ठीक है, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बीइंग यू कैन से सिटीजन और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, ठीक है, देन यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी and plant more and more trees and try to maintain you can say good environment around yourself. Then next is about wildlife. Wildlife के अंदर बेटा आपको कुछ animals का पता होना चाहिए, like which is our national animal? Tiger. ठीक है. Then name the forest in Gujarat which is famous for Asiatic lion, Gir forest. Okay. One on rhino and elephant can be found in which state? Assam में one on rhino and elephants in Karnataka. Then camel can be seen desert. Which animal is called the sheep of the desert? Camel. ठीक है. Then okay, which is our national bird? Peacock. Which is our national river? Yes. National aquatic animal? Dolphin. National tree? Banyan tree. Okay. National sport? Hockey. Yes. So आपको अपने कंट्री के जो है वो नेशनल सिंबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. अच्छा बच्चे, इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, नेचुरल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स.
गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस काइंड ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है, सेंचुरीज फॉर बर्ड्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर प्रिजर्विंग प्लांट्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया से एनिमल्स को, ठीक है, वहां से पकड़ते हैं और इन नेशनल पार्क्स में या बायोस्फीयर जो ऐसे रिजर्व होते हैं वहां पे इनकी प्रॉपर जो है वो टेक केयर की जाती है और इनको प्रॉपर मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि हमारा जो टारगेट है, हमारा मेन टारगेट क्या है, टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, ताकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए। एंड इसके लिए इको सेलिब्रेशन, इको वीक, ठीक है, यानी कि जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि बच्चों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज। देन इज अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। हमारी कंट्री में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। माइग्रेटरी का मतलब होता है दूसरी कंट्री से कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में। दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल अर्ली मार्च, यानी कि वो यहाँ पे विंटर सीजन में आते हैं और जैसे ही विंटर खत्म होता है यानी कि मार्च तक, उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। इट मीन्स ऐसे जो बर्ड्स हैं वो सीजन टू सीजन जो है वो माइग्रेट करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स। लाइक साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया से आते हैं, कितना लॉन्ग जो है वो डिस्टेंस कवर करके ही आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, क्लियर, ओके।